Assalamu alaikum students. Today's lecture is somewhat about the Lagrange equation in different coordinate systems, and our previous lecture it was about transformation of coordinates. We have discussed several kinds of coordinates, for example polar coordinates and cylindrical coordinates and spherical polar coordinates. Polar coordinates, they were the transformations of the Cartesian coordinates of the plane, that is we can transform x and y in terms of r and theta. And when we talk something about the space, that is x, y, z coordinates, we can transform those x, y, z coordinates or the space coordinates or the three-dimensional Cartesian coordinates. We can transform them into the cylindrical coordinates or the spherical coordinates. So we have discussed about the transformation of coordinates, and we have discussed a lot, and I have given you some exercises which were related to the spherical polar coordinates, that you have to find something, then so and so and so. Now we come up towards some applications. Though they are not directly related to that transformation, yet they involve some transformed coordinates. Now let's come to our lecture. First thing, example, find the equations of motion for a particle of mass m in plane polar coordinates, in cylindrical polar coordinates, and in spherical polar coordinates. Now we are having a particle of mass m in plane polar coordinates. First of all, we will do something related to the plane polar coordinates. Now, case A is plane polar coordinate. There must be an S because there are two coordinates. Alright, and we have assumed in general, assume that potential energy of the particle is represented by V. Now if I go with the plane polar coordinate, I know that what are my transformations. Plane polar coordinates में transformations क्या होती हैं? X equal to r cos theta, y equal to r sin theta, when my plane polar coordinates are r and theta. ये अब मुझे पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन से मुराद क्या होती है कि आपने लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी, ठीक है जी, क्योंकि अब वो डी-एलम्बर्ट्स वाली बात हमारी पुरानी हो गई है। अब लेग्रांज इक्वेशन की बात करेंगे, जो सही इस डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा जी, अब हमारे पास लेग्रांजियन हमें चाहिए, जाहिर है एक्स और वाई तो है, लेग्रांजियन चाहिए, और लेग्रांजियन हमें जो चाहिए वो हमें पता है कि वो हमारा t माइनस वी होता है, और एक पार्टिकल के लिए t इज हाफ एम वी स्क्वायर, और v को हम एज v ही लेने हैं, फंक्शन v लेने हैं, और v जो हमारे पास होता है, ये जो स्क्वायर वाला v है वेलोसिटी, डेट इज r डॉट, और r डॉट इन टू डायमेंशन में क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि x डॉट आई प्लस वाई डॉट जे। एक्स और y आपके पास हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी है। अब मैं x डॉट निकालूंगी। x डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि d बाई डी टी ऑफ r cos थीटा, डी आर बाई डी टी इंटू कॉस थीटा, r डॉट cos थीटा, प्लस r cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी, और ये आ गया जी r डॉट cos थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट, ये आपके पास x डॉट आ गया। y डॉट क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ r साइन थीटा
which is equals to dr by dt into sin theta plus r d by dt of sin theta, which is equals to r dot sin theta plus r cos थीटा थीटा डॉट। अब ये मेरे पास x डॉट और y डॉट आ गया। t में मुझे क्या चाहिए, v स्क्वायर चाहिए, और v स्क्वायर किसके बराबर होगा, v डॉट v विच इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये आपका v स्क्वायर बन जाएगा। जब x डॉट का स्क्वायर लोगे, इसका स्क्वायर टर्म लोगे, तो आपके पास आ जाएगा r डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस 2r डॉट कॉस थीटा साइन थीटा थीटा डॉट, और जब y का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा r डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2r डॉट कॉस थीटा साइन थीटा थीटा डॉट, और इसको ये कैंसिल कर दें, ये किसके बराबर आ गई, ये सारी की सारी चीज ये आ गई r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। तो अब हमारी वेलोसिटी जो आ गई है v स्क्वायर आपके पास आ गया r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, t आपका है हाफ m v स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, और v आपके पास है इस वक्त v r थीटा विच इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हमने सिर्फ v लिख दिया उसके लिए। तो t के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। लेग्रांजियन आपका केस के बराबर होता है t माइनस वी विच इज इक्वल्स टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v r थीटा। लेग्रांज इक्वेशन आपने निकालनी है, तो आपके पास r और थीटा में लेग्रांज इक्वेशन कौन सी होंगी, ये जरा मैं इस बॉक्स के अंदर लिख रही हूँ। लेग्रांज इक्वेशन कौन सी होंगी, एक तो r के हिसाब से होगी और दूसरी आपकी थीटा के हिसाब से होगी। r के हिसाब से आपकी ये लेग्रांज इक्वेशन बनेगी d बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी आर डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल आर इक्वल टू 0, और थीटा के हिसाब से जो बनेगी वो है d बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। अब जी हमें इसके लिए क्या तलाश करना है, पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट, पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट, पार्शियल एल बाई पार्शियल आर और पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा, ये हमें तलाश करना है। पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट किसके बराबर होगा, यहाँ से आप देखें तो ये होगा जी हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव भी आएगा 2r डॉट विच इज m r डॉट। पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट अगर आप चेक करो तो m ओवर 2r स्क्वायर थीटा डॉट विच इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर थीटा डॉट। पार्शियल एल बाई पार्शियल r अगर आप देखो तो क्योंकि सिर्फ ये जो v है पोटेंशियल एनर्जी यही r का फंक्शन है, माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल r आ जाएगा। और पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा अगर आप देखो तो ये टी में भी थीटा इन्वॉल्व नहीं है, टी में कहीं थीटा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हाँ टी में r तो इन्वॉल्व है, r जब इन्वॉल्व है तो पार्शियल एल बाय पार्शियल r में t के लिहाज से भी तो होगा, तो वो जो कॉम्पोनेंट होगा वो हाफ इंटू 2r थीटा डॉट स्क्वायर होगा। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल आर आपके पास बन गया माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल आर प्लस आर एम थीटा डॉट का स्क्वायर। इस तरह पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा आप देखोगे
तो वो टीम में तो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वी में इन्वॉल्व है, तो माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा होगा। जब आप अपनी फर्स्ट लेग्रांज इक्वेशन लिखोगे, पार्शियल डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल आर इक्वल टू 0, और इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट एम आर डॉट बन गया, माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल आर माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल आर प्लस आर एम थीटा डॉट स्क्वायर आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ अगर हम d बाई डी टी अप्लाई करें तो मास तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, आपके पास आ जाएगा r डबल डॉट प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल r माइनस आर एम थीटा डॉट स्क्वायर, या यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आ गई रूलिंग इक्वेशन वो है जी r डबल डॉट माइनस आर एम थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल r। सेकेंड लेग्रांज इक्वेशन को देखें, 0 इज इक्वल्स टू d बाई डी टी of partial L by partial theta dot minus partial L by partial theta, which is equals to d by dt of m theta dot r square minus partial L by partial theta आपके पास माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा है, जो कि बन गया m तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, थीटा डिपेंडेंट ऑन टाइम है और r स्क्वायर डिपेंडेंट ऑन टाइम है। तो जब आप डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव लोगे इनका फर्स्ट टर्म का, तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी, m थीटा डबल डॉट r स्क्वायर प्लस 2m r डॉट थीटा डॉट प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल r, और यहाँ से आप पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा, और यहाँ से आपके पास जो लेग्रांज इक्वेशन आती है वो आएगी m r स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2m r डॉट थीटा डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा। तो ये और ये दो इक्वेशन स्टार और डबल स्टार, ये दोनों इक्वेशंस आपकी रूलिंग इक्वेशंस हैं, ये वो इक्वेशंस हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन को होल्ड करेंगी, वेयर v इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन r एंड थीटा। अब हम आ जाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अभी आप पढ़ के हटे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, रो फाई और z होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई, और z इक्वल टू z होता है। ये सारे वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को मेंटेन रखते हैं। अब हमें यहाँ पे भी वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर के लिए आपको x डॉट चाहिए, y डॉट चाहिए और z डॉट चाहिए। x डॉट आपका आएगा रो डॉट कॉस फाई माइनस रो साइन फाई फाई डॉट, y डॉट जो आपके पास आएगा वो आएगा रो डॉट साइन फाई प्लस रो कॉस फाई फाई डॉट, और z डॉट आपके पास z डॉट ही रहेगा। वेलोसिटी का स्क्वायर आपने लेना है तो आपको x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर चाहिए, जो कि आपके पास आएगा रो डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 रो डॉट कॉस फाई साइन फाई फाई डॉट है, प्लस जब आप y का स्क्वायर करोगे रो डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर
फाई डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 रो डॉट साइन फाई कॉस फाई फाई डॉट प्लस जेड स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें अगर आप रो डॉट स्क्वायर कॉमन निकालो तो आपके पास अंदर रह जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो 1 के बराबर है। नेक्स्ट टू टर्म में आप रो स्क्वायर इंटू फाई डॉट स्क्वायर कॉमन निकालो, आपके पास अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो 1 के बराबर है। तो ये दो टर्म्स आपको रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, ये दो तो वैसे ही आपस में कैंसिल हो गई, प्लस जेड डॉट स्क्वायर ये आपके पास आ गई वेलोसिटी टर्म। अब टी आपका क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर अ सिंगल पार्टिकल, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। सो आपके पास t आ गया m/2 रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और लेग्रांजियन आपका है t माइनस वी, वी आपके पास इन टर्म्स ऑफ रो फाई और z ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल के अंदर वेलोसिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, डॉट टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होती, टाइम डेरिवेटिव नहीं है इन्वॉल्व। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपके हैं रो फाई और z इस वक्त। लेग्रांजियन आपका है t माइनस वी विच इज m/2 रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर टोटली डिपेंडेंट ऑन t, माइनस v आपके पास है रो फाई z। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट चाहिए, एक पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट चाहिए, एक पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड डॉट चाहिए, एक पार्शियल एल बाय पार्शियल रो चाहिए, पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई चाहिए और पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड चाहिए, ताकि हम लेग्रांज इक्वेशन में पुट कर सकें। तो हमारा पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट किसके बराबर है, m रो डॉट के बराबर। आप यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करें आपको पता चल जाएगा। पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट आपके पास बराबर आएगा m रो स्क्वायर फाई डॉट के, m रो स्क्वायर फाई डॉट के, और पार्शियल एल बाय पार्शियल z डॉट आपके पास आएगा m z डॉट के बराबर। ठीक है जी, पार्शियल एल पार्शियल z डॉट किसके बराबर हो गया, ये आया आपके पास m z डॉट के बराबर। अब जी पार्शियल एल बाय पार्शियल रो किसके बराबर है, ये आपके पास आ गया जी बराबर है m रो फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल रो। ठीक है जी, इसके बराबर आ गया। क्यों, इसलिए कि रो की जो एक टर्म है वो आपके पास t में इन्वॉल्व हो रही है, रो वाली टर्म आपके पास t में इन्वॉल्व हो रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरी v के अंदर रो इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई जो है वो आपके पास माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल फाई आएगा, और पार्शियल एल बाय पार्शियल z आपके पास माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल z के बराबर आएगा। ठीक है जी, अब हम लेग्रांज इक्वेशन लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेग्रांज इक्वेशन आपके पास में आएंगी, मैं पहले लिख रही हूँ कि लेग्रांज इक्वेशन क्या बनेंगी। लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बनेंगी वो क्या होंगी, पहले रो के अकॉर्डिंगली d बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल रो इक्वल टू 0। दूसरी बनेगी जी फाई के अलोंग d बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई इज 0। और तीसरी z के अबाउट बनेगी d बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल z डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल z इक्वल टू 0। जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0 इक्वल टू d बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट क्या है, मैं यहाँ से देख रही हूँ m रो डॉट है जी, m रो डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल रो क्या होगा, वो है जी मेरे पास m रो फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल रो, m रो फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल रो इक्वल टू 0।
और ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी m इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, m रो डबल डॉट माइनस m रो फाइव डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल रो इक्वल टू 0, और ऑन द अदर हैंड हम इसको लिख सकते हैं m रो डबल डॉट माइनस m रो फाइव डॉट स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल रो विद नेगेटिव साइन। ये आपके पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू रो। अब दूसरी में मैं वैल्यूज पुट करूंगी, पार्शियल एल बाय पार्शियल फाइव डॉट मेरे पास क्या था, पार्शियल एल बाय पार्शियल फाइव डॉट मेरे पास है m रो स्क्वायर फाइव डॉट, और पार्शियल एल बाय पार्शियल फाइव माइनस v ओवर रो। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल फाइव डॉट m रो स्क्वायर फाइव डॉट है, और पार्शियल एल बाय पार्शियल फाइव माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल फाइव है। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई जी, डेरिवेटिव में लूंगी तो m तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, बाकी मेरे पास 2 रो डॉट फाइव डॉट बन गया प्लस रो स्क्वायर फाइव डबल डॉट प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल फाइव इक्वल टू 0 आ गया। या मैं ऑन द अदर हैंड इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2m रो डॉट फाइव डॉट प्लस m रो स्क्वायर फाइव डबल डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल फाइव। और जब z के हवाले से मैं इक्वेशन देखूंगी तो वहां पे जी पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट मेरे पास आ गया mz डॉट, और पार्शियल l बाय पार्शियल z मेरे पास आ गया माइनस पार्शियल प्लस पार्शियल v बाय माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल z इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आता है mz डबल डॉट प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल z इक्वल टू 0, और इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि v दूसरी तरफ चला जाए, mz डबल डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल z। So this one is the second Lagrange equation of motion, and this one is the third Lagrange equation of motion, and equation 1, 2 and 3, it governs the motion of particle of mass m in the system with cylindrical coordinates. अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की तरफ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं रो थीटा फाई। ट्रांसफॉर्मेशंस अब मैं ज़रा डिफरेंट इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, पहली से डिफरेंट है, जो आपने पढ़ी हुई है उससे थोड़ी डिफरेंट आपको लगेंगी, लेकिन है ये भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। x इक्वल टू रो साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई, y इक्वल टू रो कॉस थीटा कॉस फाई, और z आपके पास है साइन फाई। अच्छा जी, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, लेग्रांजियन आपने फाइंड आउट करना है। लेग्रांजियन के लिए आपको t माइनस वी चाहिए। t आपका किसके बराबर है, हाफ m v स्क्वायर के बराबर, और v हम कहेंगे कि ये रो थीटा फाई ही है, ठीक है। अब v स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब मैं x डॉट लिख रही हूँ, x डॉट आपके पास क्या आएगा, जब आप डेरिवेटिव लोगे रो डॉट साइन थीटा कॉस फाई प्लस रो थीटा डॉट कॉस थीटा कॉस फाई माइनस रो फाई डॉट साइन थीटा साइन फाई, ये आ जाएगा। अच्छा, y डॉट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास आएगा रो डॉट कॉस थीटा कॉस फाई प्लस रो थीटा डॉट, प्लस की बजाय माइनस आएगा क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा कॉस फाई माइनस रो फाई डॉट कॉस थीटा साइन फाई, और z डॉट आपके पास क्या आएगा, ये आएगा रो डॉट साइन फाई प्लस रो कॉस फाई फाई डॉट। जब आप स्क्वायर करोगे x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर लोगे तो आपके पास टर्म्स आएंगी
वो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि 6 टर्म्स आपके पास x डॉट के साथ आएंगी, 6 टर्म्स आपके पास y डॉट के हिसाब से आएंगी और 4 टर्म्स आपके पास z डॉट के हिसाब से आ जाएंगी। तो वो मैं लिख देती हूँ, रो डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रो डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 रो स्क्वायर थीटा डॉट फाई डॉट सॉरी माइनस साइन माइनस 2 रो स्क्वायर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई माइनस 2 रो डॉट फाई डॉट रो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म्स लिख रही हूँ, रो डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 रो डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 रो डॉट फाई डॉट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस 2 रो स्क्वायर थीटा डॉट फाई डॉट साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस अब जेड स्क्वायर वाली टर्म्स रो डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 रो डॉट साइन फाई कॉस फाई फाई डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ली है, पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आप ये काम कर सकते हैं। कोई खास उसे ये नहीं होगा कि उससे आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन आप वो ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है, ये ना हो कि दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसीलिए यूज़ की है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए है, ये नहीं है कि ये जो है ये कोई डिफरेंट सी चीज़ आ गई है, ये वही चीज़ है, बस ये कि अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। तो चाहे ये आ जाए चाहे वो आप ले लें, आपके पास जो भी लैग्रांज इक्वेशन निकलेंगी वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकलेंगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे आ रहा है उसको 1 लिख देंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की बजाय 1 डाल देंगे, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो ये एक्स डॉट स्क्वायर के स्क्वायर टर्म में ये थीटा डॉट फाई डॉट वाली टर्म और वाई डॉट स्क्वायर के अंदर भी थीटा डॉट फाई डॉट वाली टर्म कैंसिल आउट एक दूसरे को कर रहे हैं। इसी तरह आप रो डॉट वाली टर्म्स देखें तो यहाँ एक्स डॉट स्क्वायर वाली पहली टर्म, वाई डॉट स्क्वायर वाली पहली टर्म, इनसे आपके पास रो डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ रहा है, जो कि आपके पास जो तीसरी टर्म है रो डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वाली, इसके साथ मिलके आपको सिर्फ रो डॉट स्क्वायर दे। अच्छा, सेकेंडली आपके पास आ गया रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप गौर करें और इस वाली टर्म पे गौर करें, ये तीनों टर्म्स मिलके आपको रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर देनी है। और जी इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों मिलके इसके साथ कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह ये टर्म पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन के साथ सेम टर्म्स हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो। तो अब रह गई ये वाली टर्म, ये देखें और ये वाली देखें।
ये दोनों मिलके आपको दे रही हैं रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो टी आपके पास क्या आ जाएगा, टी आपके पास आ गया हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, और आगे क्या आएगा जी, ये ये दे क्या रही है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर फाई है, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर। अच्छा जी, अब लैग्रांजियन हमारा है t माइनस वी विच इज हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी रो फाई एंड थीटा या रो थीटा फाई। अच्छा जी, अब हमें चाहिए क्या लैग्रांज इक्वेशन के लिए, पार्शियल एल बाय पार्शियल रो, पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट और पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट। So my partial L by partial rho dot is m rho dot, partial L by partial phi dot is m rho square phi dot and partial L by partial theta dot is m rho square cos square phi theta dot. Now my partial L by partial rho, it is equals to 2 rho dot phi dot square plus cos square phi theta dot square minus partial v by partial rho, and my partial L by partial phi, it is 2 rho square cos phi, differentiation of cos phi with respect to phi, sin phi with negative sign phi dot theta dot square minus partial v by partial phi, and the third partial L by partial rho, it is equals to partial L by partial theta, it is equals to minus partial v by partial theta. So my first equation, first Lagrange equation, 0 equal to d by dt partial L by partial rho dot minus partial L by partial rho, it would be equal to m rho double dot, because rho dot is dependent on time and m is independent of time, minus 2 rho dot phi dot square plus cos square phi theta dot square plus partial v by partial rho. It is the first Lagrange equation. The second one is d by dt partial L by partial phi dot minus partial L by partial phi, which is m total derivative of rho square phi dot minus into minus becomes plus 2 rho square cos phi sin phi phi dot theta dot square plus partial v by partial phi, and the third is d by dt of partial L by partial theta dot minus partial L by partial theta, which is m d by dt of rho square cos square phi theta dot, which will open and gives a lot of terms, minus partial v by partial theta. So this one is your first equation, Lagrange equation, this one is the second and this one is the third, which rules out your entire equation of motions, entire dynamical system. And now we are having another example. It is a bit little different, though it will not take a lot of time. A bead slides without friction on a frictionless wire in the shape of a cycloid with equations these. एक बीड है जो फ्रिक्शन के बगैर स्लाइड कर रहा है, वायर भी फ्रिक्शनलेस है, वायर जो है वो इन द शेप ऑफ साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड क्या होता है, ऐसे गोल शेप में, ठीक है। उसकी इक्वेशंस दी गई हैं और थीटा का भी बताया गया है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई।
फाइंड लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बीट। हमने लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी। अब जी हमारा ये आएगा जी साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है, और जी ये उसके अंदर आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस, और ये आ जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब बीट जो है वो यहाँ पे है और वो इधर भी मूव करता है और इधर भी मूव करता है और स्लाइड कर रहा है, और ये उसका ओरिजिन है 0 0, और बीट से आप जो है वो स्लाइड कर रहे हैं, तो वाई आपका है A1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा नहीं है यहाँ। ठीक है जी। आपके पास क्या है प्रॉब्लम, एक बीड है जो स्लाइड करता है फ्रिक्शन के बगैर, और एक वायर है फ्रिक्शनलेस और वायर के ऊपर स्लाइड करता है, और वायर जो है वो साइक्लॉइड की फॉर्म में, और साइक्लॉइड की फॉर्म में है। तो बीट जब मूव करेगा, बीट कैसे मूव करेगा, ऐसे ऊपर और नीचे। तो जो आपके पास जाहिर है एल आपको चाहिए, लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, एल चाहिए, आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि एल टी माइनस वी है। ठीक है। और वी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बीट की चेंज कब होगी, जब ये साइक्लॉइड पे ऊपर और नीचे मूव करेगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अंदर जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी देगा। y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी इक्वेशन होती है 1 प्लस कॉस थीटा। तो v आपका क्या होगा, एक तो बीट का अपना वेट है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो भी चेंज इन y आ रहा है। चेंज जो आ रहा है जाहिर है ये 0 से मूव करेगा, तो जो भी चेंज आ रहा है वो जाहिर है y आ रहा है। तो mg इंटू क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा mg इंटू y, which is mga 1 plus cos theta, and this is your potential energy. Now what would be your kinetic energy, T? Your T is, as you know, it is half mv square or half mr square, where r is the position vector, r dot square. तो r डॉट स्क्वायर के लिए आपको चाहिए होगा 2 डायमेंशन में हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। उसके लिए आपको x डॉट और y डॉट निकालना है। जब आप x डॉट निकालते हो आपके पास क्या आएगा, a थीटा डॉट माइनस साइन का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू थीटा डॉट, यानी कि a थीटा डॉट 1 माइनस cos थीटा आपके पास आ गया x डॉट। y डॉट आपके पास क्या आएगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट और माइनस ए थीटा डॉट साइन थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू हैव एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी एक्स डॉट स्क्वायर जब हम करेंगे ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप वाई डॉट का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मिलके बनेगा आपके पास ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 2 कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपके पास बन गया 2 ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो टी आपके पास हो गया m/2 इंटू 2 ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया, टी आपके पास m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। मैं जरा चेक कर लूं क्या मैंने सही पुट की है, 2 a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। टी आपका ये आ गया। v आपका था, ये भी मैं देख लेती हूँ क्या था जी मेरा v था mga 1 प्लस कॉस थीटा, mga 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। एल लेग्रानियन टी माइनस वी के बराबर है एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब लेग्रानियन का डेरिवेटिव आप देखो किस कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा, जाहिर है थीटा इज द कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास लेग्रांज इक्वेशन जो होगी वो डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा इक्वल टू 0 होगी,
जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसमें पुट करेंगे डी बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट किसके बराबर आएगा, एम ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आ गया। और दूसरी टर्म में तो थीटा है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव लेंगे इनफैक्ट, तो डेरिवेटिव लेके सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगी डी बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट किसके बराबर है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। इसका जब लेंगे पहली टर्म से ही आएगा एम ए स्क्वायर इंटू 2 थीटा डॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी वाली टर्म में उसे आपके पास पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा आएगा वहां पे, और वो कहां से आएगा, वो इन दोनों टर्म से आएगा, एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस कॉस का साइन थीटा, और माइनस एम जी ए कॉस का डेरिवेटिव प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो ये डेरिवेटिव जो बन गया है 2m निकालने ए स्क्वायर भी निकालने क्योंकि कांस्टेंट है डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और यहां से हम माइनस एम ए निकाल सकते हैं तो, और साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रह गया, ए थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जी, एम ए साइन थीटा तो निकल गया, रह गया जी इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द bead. Now we have to come to the next example. A bead of mass m is constrained to move on a frictionless wire AB fixed at point A on the vertical axis OA such that AB rotates about OA with constant angular velocity W. एक bead है जिसका मास है m, उसको कंस्ट्रेंट किया गया है कि वो एक फ्रिक्शनलेस वायर AB पे मूव करे, और फ्रिक्शनलेस वायर A जो है वो किसी पॉइंट A पे जो वर्टिकल एक्सिस OA पे है वहां पे फिक्स है, और AB रोटेट करेगा OA के अबाउट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी W। फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द बीट। सिनेरियो क्या है कि एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, स्पेस में ही होगा ना, हम कहते हैं जी ये एक्स वाई स्पेस है और ये वर्टिकल एक्सिस है z, और इसके ऊपर ये ओरिजिन है O, इसके ऊपर एक पॉइंट है A के ऊपर हमने एक वायर फ्रिक्शनलेस वायर है AB, इसके ऊपर हमने एक बीड ऑफ मास m, उसको हमने कहा है कि वो इसी के ऊपर मूव करेगा, वो कहीं नहीं मूव करेगा, और P इज द पार्टिकल बीड ऑफ मास m। अच्छा, अब ये जो वायर है ये घूम रही है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, तो वायर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे घूमने के, वायर के कोऑर्डिनेट्स होंगे ओमेगा के लिहाज से कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ठीक है, यही होंगे ना। अब पार्टिकल जो है उसको देखो कि ये जी इस वायर के ऊपर जो घूम रही है, और जी वायर जाहिर है फिक्स है, फ्रिक्शनलेस वायर है, वो OA के साथ कुछ एंगल भी बना रही है, लेटस से वो एंगल अल्फा है, तो B का डिस्टेंस क्या होगा एट मोस्ट A से, OA से इस B का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, या अगर आप पार्टिकल के हिसाब से देख रहे हो तो पार्टिकल इससे कितना डिस्टेंट है, कितना दूर है। हमें ये पता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी W हो तो एक पार्टिकल का हम डिस्टेंस ले लेते हैं D, और हम कहते हैं कि जो x एक्सिस है डेट इज इक्वल्स टू D cos ओमेगा t, x cos WT ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट आपका D sin WT होता है, ठीक है। अब ये D क्या है, D इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस एंगल, दिस थिंग, तो ये डिस्टेंस कितना ना होगा। अगर हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो r डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल A से r डिस्टेंस पे है, तो ये D कितना होगा,
ये डी क्या है, इसको मैं पॉइंट सी का नाम दे देती हूँ। डी जो है वो आपका है सी पी, और ए पी आपको पता है कि ये आर है जो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल है, डी आपका सी पी है। तो डी किसके बराबर होगा, डी इक्वल टू आर साइन अल्फा। ठीक है जी, तो x आपके पास आ गया r साइन अल्फा कॉस डब्ल्यू टी, y आपके पास आ गया r साइन अल्फा साइन डब्ल्यू टी व्हेन अल्फा इज फिक्स्ड, अल्फा इज अ कांस्टेंट, और ओमेगा उसने पहले बता दिया है कि कांस्टेंट है। अल्फा एंड ओमेगा या डब्ल्यू, अल्फा एंड डब्ल्यू आर कांस्टेंट्स। अब हम आगे चलते हैं जी। x हमारे पास क्या था, क्या आ गया, r साइन अल्फा कॉस डब्ल्यू टी, y आपके पास आ गया r साइन अल्फा साइन डब्ल्यू टी। वेरिएबल आपके पास क्या है, r और t। ठीक है जी, x और y आपके पास आ गए। आप यहां से x डॉट निकाल सकते हो, y डॉट निकाल सकते हो। वट वुड यू थिंक अबाउट z? अब पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इस वायर के ऊपर, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। पोटेंशियल इस पार्टिकल का क्या होगा, पोटेंशियल इसका होगा mg, जो भी z के अंदर चेंज आ रहा है, z के लॉन्ग है ना ये मोशन हो रही, तो पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो चेंज इन z होगी, जो भी चेंज इन हाइट आ गया, जो भी चेंज इन z आ गया। अच्छा, अब z एक्सिस पे ये पार्टिकल ओवरऑल कहां तक जा सकता है, हम कहते हैं कि h जो है ये टोटल लेंथ है a से लेके d तक, ए डी टोटल लेंथ जो है ये है h के बराबर। ठीक है, h अगर टोटल लेंथ है तो चेंज इन z क्या होगा, mg। h में से वो आप निकाल दें कि जहां पे पार्टिकल, जितना पार्टिकल मूव कर चुका है, यानी कि आप निकालोगे क्या, r cos अल्फा को निकाल दोगे, यानी ये डिस्टेंस जो है AC का आपने फाइंड आउट अब क्या करना है, CD। आपके जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पोटेंशियल आपका mg इंटू CD है। ठीक है, AD आपको पता है h है, AC आपको पता है r cos थी अल्फा है, तो h माइनस आर कॉस अल्फा इज योर पोटेंशियल, mgh माइनस आर कॉस अल्फा। तो z आपके पास आ गया, या v आपके पास आ गया mgh माइनस कॉस अल्फा इंटू आर, h माइनस आर कॉस अल्फा, ये आपके पास v आ गया। v इज डिपेंडेंट ऑन r ऑल्सो, एंड योर x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट ऑन r एंड t। ठीक है जी, अब x डॉट लाएंगे, x डॉट आपके पास चेंज किस में आ रहा है, r में आ रहा है, t में आ रहा है। x डॉट क्या होगा, r डॉट साइन अल्फा कांस्टेंट है, cos ओमेगा t में चेंज आएगा, प्लस r साइन अल्फा एज इट इज, cos ओमेगा t का टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, टी डी टी यानी कॉज ओमेगा टी, टी बाई डी टी ऑफ कॉज ओमेगा टी आप लोगे, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी या साइन डब्ल्यू टी डी टी ओवर डी टी, में मुंह से ओमेगा निकल जाता है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए अक्सर वही यूज होता है, तो यहाँ पे बहरहाल डब्ल्यू है विच इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू टी। अब वाई डॉट में लूंगी, वाई डॉट मेरे पास आएगा आर डॉट साइन अल्फा साइन डब्ल्यू टी प्लस आर साइन अल्फा कॉस डब्ल्यू टी इंटू डब्ल्यू, क्योंकि ओमेगा तो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है ना, और जी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर जब हम लेंगे तो आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म से, प्लस आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा लास्ट टू टर्म से, और दरमियान में जो दो टर्म्स आएंगी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो हमारे पास क्या आ गया जी, इनटू डैट W एज ए कांस्टेंट आ गया ना, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। अच्छा जी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है T m/2 v स्क्वायर है, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, और वो आपके पास आ गया m/2 r डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अब ये तो थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी V है, V इज डिपेंडेंट ऑन योर R एंड अल्फा एंड सो विच इज mgh माइनस r cos अल्फा। ठीक है जी, ये आ गया, ये आपका V है। और जी अब आपको लेग्रांज इक्वेशन चाहिए। लेग्रांजियन आपका होता है T माइनस वी। लेग्रांज इक्वेशन आपकी किसके हिसाब से बनेंगे, आपका वेरिएबल क्या है, आपका R है, तो R के हिसाब से एक ही लेग्रांज इक्वेशन आएगी। आपके पास d/dt ऑफ पार्शियल L बाय पार्शियल R डॉट माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल R इक्वल टू 0 बनेगा। एंड दैट्स द रिक्वायर्ड लेग्रांजियन इक्वेशन। आप इसमें खुद वैल्यूज पुट करें, खुद इसको सॉल्व करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको करना कैसे। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ। टू इक्वल masses आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग हैविंग इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट K so that the masses are free to slide on frictionless table AB। एक टेबल है, फ्रिक्शनलेस है AB, ये A है, ये B है, और इसके ऊपर एक मास ये पड़ा है और एक ये पड़ा है। दोनों इक्वल मासेस हैं M M। ये P1 है और ये P2 है, दोनों मासेस M है। ठीक है जी, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से एक स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब मासेस जो हैं ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे फ्री हैं कि ये जिधर को मर्जी स्लाइड कर जाए। अब वॉल्स जो A और B हैं, जिसके साथ ये इसी स्प्रिंग के एंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, ये फिक्स हैं। ठीक है, यहाँ स्प्रिंग का भी एंड अटैच है B वाला और A वाला भी अटैच है। तो इसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करनी है, वही आपने लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन देखनी है। अब उसके अंदर हम अज्यूम ये करते हैं कि ये मास जो है ये भी मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, हम कहते हैं ये सारा का सारा जो टेबल का है ना, ये सारा का सारा जो हमारा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। हम कहते हैं ये सारा अलोंग एक्स एक्सिस है, सारा सेटअप। जो मास फर्स्ट मास के मूव करने का, फर्स्ट मास का पोजीशन वेक्टर x1 i है, सेकंड मास का पोजीशन वेक्टर x2 i है, और फर्स्ट मास के मूव करने के लिए वेलोसिटी, यानी फर्स्ट मास का कोऑर्डिनेट x1 है, सेकंड मास का कोऑर्डिनेट x2 है, फर्स्ट मास की वेलोसिटी x1 डॉट है, सेकंड मास की वेलोसिटी क्या हुई, x2 डॉट हो गई। तो t हमारे पास इस केस में हाफ m, m1 की बजाय भी m आएगा, m2 की बजाय भी m आएगा, m x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर है, ये आपका हो गया t। उसके बाद जी आपको अब सेकेंडली क्या चाहिए, आपको चाहिए v। v किसके बराबर होगा, v अब आप ये देखें कि फर्स्ट मास के स्ट्रेच होने का इन डिस्टेंस आपने लेना है। ठीक है, और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल क्या होता है इस सिलसिले में, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि आपका पोटेंशियल होता है हाफ इंटू के इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल होता है इन द केसेस ऑफ स्प्रिंग। तो उस लिहाज से देखें तो ये फर्स्ट मास के उधर जाने के लिए, फर्स्ट मास पे जो इसका पोटेंशियल बन रहा है वो क्या हुआ, मास की अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पोटेंशियल है और राइट हैंड साइड पे क्या पोटेंशियल है, तो इस मास की लेफ्ट हैंड साइड पे
पोटेंशियल आपका बनेगा हाफ के, ये डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसी मास की फर्स्ट मास की लेफ्ट हैंड साइड पे आप फर्स्ट मास की राइट हैंड साइड पे जो आपका पोटेंशियल बना वो हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर है। फर्स्ट मास की राइट हैंड साइड पे जो पोटेंशियल बना हाफ के x1 स्क्वायर है, और ये सेकंड मास की राइट हैंड साइड पे जो आपका पोटेंशियल बन रहा है वो है हाफ के x2 स्क्वायर। ये स्प्रिंग टेंशन आ गई, ठीक है, उसके लिहाज से आपको पोटेंशियल निकला है। T आपके पास आ गया, V आपके पास आ गया, तो आपके पास L जो है वो आपका T माइनस V है, विच इज हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर माइनस V आपके पास क्या होता, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। ये आपका L आ गया। अब आपकी लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, पहली तो ये होगी d बाई डी टी ऑफ पार्शल L बाय पार्शल x1 डॉट माइनस पार्शल L बाय पार्शल x1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है d बाई डी टी पार्शल L बाय पार्शल x2 डॉट माइनस पार्शल L बाय पार्शल x2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, पार्शल L बाय पार्शल x1 डॉट ये किसके बराबर है, x1 डॉट के बराबर, सॉरी यहाँ पे m भी आएगा, m x1 डॉट के बराबर, और पार्शल L बाय पार्शल x2 डॉट आपके पास m x2 डॉट के बराबर आएगा। पार्शल L बाय पार्शल x1 आपके पास किसके बराबर आ गया, यहां से एक तो चीज आ गई माइनस के x1 माइनस के x2 माइनस x1 इंटू माइनस 1, ये प्लस के साथ आ गया। और इसी तरह पार्शल L बाय पार्शल x2 आपके पास क्या आ गया, इस वाले हिस्से से आपको मिलेगा माइनस के x2 माइनस x1, और दूसरे हिस्से से आपको मिलेगा माइनस के x2। जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी m x1 डबल डॉट माइनस इक्वल टू माइनस के x1 प्लस के x2 माइनस x1, या m x1 डबल डॉट इक्वल टू k इंटू 2x2 माइनस 2 सॉरी x2 माइनस 2x1, और इसी तरह जब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आएगा m x2 डबल डॉट इक्वल टू माइनस के x2 प्लस के x1 माइनस के x2, और m x2 डबल डॉट इक्वल टू माइनस के प्लस के इंटू x1 माइनस 2x2। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है ना, एंड दोज आर द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन विच रूल ओवर होल सिस्टम, ठीक है जी। अब इसके साथ ही ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने कंप्लीट करा लिया लेग्रांजियन की। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो इंशाल्लाह हैमिल्टोनियन के मुतालिक होगा। एक नई चीज़ है, देखिएगा कैसी होती है। हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके मुतालिक हम बात करेंगे, ठीक है जी। अब ये सारा का सारा जो आज का था हमारा लेक्चर वो सारी की सारी एप्लीकेशंस पे था। ये लेग्रांज की एप्लीकेशंस थी लेग्रांजियन की, और मुख्तलिफ चीज़ों से मुतय्यन रिलेटेड थी। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी थोड़ी सी बातें आई, उसके अलावा भी बातें आ गई। मेरा ख्याल है हमने लेग्रांजियन से मुतालिक बहुत सारी एग्जांपल्स वगैरह वो कर ली हैं, सीख ली हैं, देख ली हैं। तो होपफुली इससे आगे आपको ये लेग्रांजियन से मुतालिक चीज़ों के मुतालिक नहीं देखना पड़ेगा, नहीं इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। बस ये है कि अब आप मुख्तलिफ बुक्स लें और उसमें से स्पेशली जो बुक्स मैंने बताई हैं वो भी देखें। उसके अलावा और भी एनालिटिकल डायनेमिक्स की बुक्स देखें, उसमें से क्वेश्चंस तैयार करें, उसमें से खुद पार्टिकल्स इसको क्वेश्चंस को डील करें। मैथमेटिशियन के तौर पे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, उसके अलावा आप रिजल्ट नहीं अच्छा दे सकते। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।